rather third session, and I'm delighted that our guest has joined us. Mandeep sir, could you please switch on your camera? Hi. Welcome, sir. Yeah, thank you, sir. Hello, welcome, sir. To the students, this is our second session, which is how to stay focused and self-motivated, something which you will badly need in next 2 years. So, Mr. Sandeep Sodhi, I am having pleasure to introduce him. He is a thought leader, life and business coach, strategist, agent of change, and a storyteller. He's a dynamic professional with over 25 years of corporate work experience. He has worked with brands like Standard Chartered, The Times of India, American College, New York Life, Hindustan Wellness, and he has held senior positions like that of CEO and president. He has helped organizations in building sales review models, identify and train leaders, thought reengineering, stress management, build impactful training and coaching content. And most important, a skill that he thinks he is the best as it, and I believe he is at it. This is the art of storytelling. Uh, Delighted to welcome you, Mandeep sir, on behalf of ILM Lucknow family. Thank you so Thank much you. for joining in. Thank Uh, you Over to you, sir. so much, Devesh. नमस्कार फिर से मेरा नाम दिया है सर थोड़ा और वॉइस धीमे आ रही है आपकी, वैसे मनदीप भी सर, ठीक है वॉइस कम। नहीं सर, बढ़ नॉट रहा है मच। कि ओके जस्ट गिव मी वन सेकेंड now हेलो। is the voice okay now? Yeah, okay. So जैसे इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, नौकरी करते हुए मुझे करीबन 25 साल हो गए। आई बीन इन द कॉर्पोरेट स्पेस और विद गॉड्स ग्रेस पिछले करीबन 12-13 साल से आई बीन इन लीडरशिप पोजीशन। आई बीन हैंडलिंग स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशंस, पीपल्स रोल, बिलीफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी मजेदार जर्नी रही है मेरी। और जब यंगस्टर से बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज फन to know what youngsters are thinking, and there's always an interesting conversation because कुछ experience है मेरा और कुछ मैं अभी बच्चा ही हूँ, तो बात करने में बड़ा मजा आता है। I am married to a superwoman. She's been my wife for past 20 years, who was earlier my girlfriend, and now we have two children. My son is 17 years old. His name is Kabir, and my daughter is going to be 11. Her name is Bunny. So um, life is fun. And लॉकडाउन के अंदर पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, बट दिस इज द न्यू नॉर्मल। जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बड़ा। द टॉपिक इज बेसिकली हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। बीच बीच में who'll be Dinesh, who'll be taking my queries in between? Uh, Sir, for the questions that you will be asking, पोल or तो you are है ही talking है, about the, पोल के अलावा if they have a query in between, they will be putting it up over here in chat box or so I'll chat check में with you query आ in रही। between. हाँ हाँ, we can Okay, check it. fantastic. I'll ask the questions to you if somebody puts in. Okay. And they So can इसको directly also, I think, And if they you can have. directly also ask, Huh? right? yeah, Right. They can absolutely, directly. Everybody has a mic. absolutely, We can all Right. ask. Yeah. great. So Dr. Neela, I don't know the format, so मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो भी queries होंगी एक जगह पार्क करते जाएंगे। I will give a chance for question and answers. Right. So सब chat में डालेंगे. All students, please put your queries on chat. मेरे को एक चीज समझ में आया था। when I was growing up, I was dyslexic. Dyslexia is basically when you are not able to comprehend data, numbers and everything. D भी लगता है, O और zero में फर्क नहीं दिखता। So I had that challenge. From there to today, working with data scientists. So life has changed completely. और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, this is practical experience. ये कोई ऐसी चीज नहीं जो थ्योरी है, ये absolute practical experience है। I always had a question on myself कि I was dealing with people who came from Boston or Harvard or from IIMs, IITs, and हमेशा है ना आपके पास एक comparison का एक scale होगा कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, and you will always judge yourself on that. The best thing to get started for the session is you need to remember कोई कहीं से आया हो, 3 साल में जब आप काम शुरू करोगे वो और आप सेम प्लेटफॉर्म पे हो। उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्या सीखा इन 3 साल में,
और आगे आपने जिंदगी कैसी बनाई, दोनों का सेम होगा. सो आज congratulations, this is your first day. It's a great university. I have been engaging with them earlier also. So ensure that you ask a lot of questions. Curiosity is the only way to know whether you are on the right path or not. वो क्वेश्चन जो आपने पूछ लिया वो इंटेलिजेंट था, जो क्वेश्चन आप नहीं पूछते वो स्टूपिड था. So let's stay intelligent. It does not have to be right or wrong. It could be you think it's a stupid question. It's not a stupid question. It's a request for more information. Ask it. Okay? It is better to interrupt your teacher rather than you interrupt success in your life. So let's start the session with that high note. And I see a lot of people here. So बीच में polls भी आएंगे आपको. You'll be getting opinion polls, and these opinion polls basically will actually keep structuring how we will take this forward. So as the introduction is already done, मेरा एक और facet है जिसको मैं कहता हूँ the galley says. So this is a place where I talk to a lot of youngsters. I am on Instagram, I am on Facebook, I am on a YouTube channel where I talk to a lot of youngsters. And मुझे क्यों अच्छा लगता है बात करना, क्योंकि हिंदुस्तान में जहाँ पे 134 करोड़ की आबादी है, we are a population of 134 crores, 53 crores is youth. And out of that total population, over a huge number are today struggling for jobs, are struggling for livelihood, which means it's very important and empirical that you just don't learn theory, you learn what is life. और that will be your edge. So आगे चलते हैं. जो टॉपिक था उसको अगर मैं थोड़ा सा और स्क्वीज करूं, बिकॉज जो बात मैं आज करने वाला हूं, फोकस एंड मोटिवेशन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स. ये एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, इनकी दो डायमेंशंस हैं, एक्शन एंड एक्सक्यूजेस. So if you truly want to be success, and success, if you can see the picture says it's still loading, which means success is an ongoing event. You will never, आप एकदम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो जाओगे. आप गौतम बुद्ध बन जाओगे जिस दिन आपको लगेगा नहीं 100% हो गया स्केल, you will become God. So success will always be an ongoing thing, but the base implementation of success is focus, motivation, action, and excuses को ऑफ करना पड़ेगा. Are you all with me? Great. तो जल्दी से जंप करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ एक्शन, एंड मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत करवाने वाला हूँ, होमवर्क बहुत सारा करवाऊंगा. सो देवेश कीप हेल्पिंग मी विद द पोल्स एंड ओपिनियन पोल्स बिकॉज बहुत सारा काम होगा इन सबके साथ. ओके गुड. सो लेट्स जस्ट जंप इन टू द फर्स्ट पार्ट. अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ डेटा, इट विल हैव अ लॉट ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज मुझे लगता है अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, और थोड़ा लिख के ज्यादा बात करें हम, राइट? सो पहला प्रमाइस मेरा क्या है? Money is only a small part of the puzzle. आप लोगों को लगता है कि पैसा जब बनता है तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है. Money is just one small part of the puzzle. Success is much larger than that. मेरे गुरु मुझे हमेशा बताते हैं, मेरे मेंटर मुझे बोलते हैं, money is a good servant, it's a bad master. अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो गए. Which brings me to my understanding of success. I usually run a program. This program is called the 7 Spheres of Success. I do this with a lot of youngsters, and this is a program that talks about holistic success. पैसा सिर्फ एक पार्ट है इसका. मैंने कई लोग देखे हैं who are making a lot of money, but mentally they are stressed, spiritually they are distanced. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड है, बट घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है. मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जिनकी बॉडी फिजिक बड़ी अच्छी है लेकिन सोच खराब है. मैंने कई लोग देखे हैं जो अदरवाइज सक्सेसफुल है काम में, सोशल वर्क बहुत करते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप जो घर में उनको लेके बड़ा गड़बड़ है. सो ये जो मैं आपको पहला प्रमाइस बता रहा हूँ लाइफ का, ये बड़ा जरूरी है और ये इसी पैटर्न में चलेगा, ये आगे पीछे नहीं होगा. सक्सेस हैज टू बी नंबर 1 इन योर माइंड, मेंटल.
मेरी सोच कामयाब होनी चाहिए, पहला सक्सेस है ये। सो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, आप एक पेपर पेंसिल रख लो, क्योंकि बहुत सारे लिखने वाले काम होंगे, तो अगर नहीं है तो ले आओ फटाफट, नहीं है तो कोई नैपकिन उठा लो, घर का टेबल खराब कर लो, जो भी है, लेकिन लिखना शुरू करो। तो पहला सक्सेस है मेंटल, माइंड, मेरी सोच। डू आई थिंक सक्सेस? नाउ व्हेन आई से सक्सेसफुल थिंकिंग, इफ आई, अगर मैं दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता हूँ, आई फील अपसेट अबाउट पीपल, आई हेट पीपल, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, आई एम नॉट मेंटली सक्सेसफुल। बट इफ आई कैन स्माइल ऑल द टाइम, if I can be happy in adversity, then I'm mentally successful. I'm sure from a scale of 1 to 10, where 1 is low and 10 is high, हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं रेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को मेंटल सक्सेस पे रेट करना on a scale of 1 to 10, where 1 is the lowest. Lowest means कि I feel stressed, मेरे को बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं परेशान रहता हूँ, मेरे में बहुत एंजाइटी लेवल्स हाई है, तो 1 हो जाएगा। 10 होगा मेरे से, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मैं तो हमेशा स्माइल करता हूँ, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, आई फॉरगिव पीपल, आई फॉरगेट इफ समवन हैज डन समथिंग बैड टू मी, आई एम ऑलवेज थैंकफुल। वो 10 आ गया। आप कहाँ पे रेट करते हैं अपने आप को? रेट करो। दिस इज समथिंग फॉर यू, डोंट नीड टू शेयर इट विद एनीबॉडी, ये आपके लिए है। दूसरा सक्सेस आपका है फिजिकल सक्सेस। फिजिकल सक्सेस डज नॉट मीन कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी या कैटरीना कैफ का 0 फिगर। Physical success is being healthy in the body. आप दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, you cannot take the right decisions. If your mind works fast and the body is slow, you will still fail. I still remember मेरे एक बेंगलोर में we were going for a deal and one of my senior executives, he was with me, और उस दिन रात को पार्टी दी थी पूरी टीम को, और उसने खूब खा लिया था बिकॉज बहुत टेस्टी खाना था। एंड सुबह उसका हार्ट बर्न, एसिडिटी हो रही थी, एंड फिजिकली ही वाज नॉट फीलिंग वेल व्हाइल ही वाज वेरी शार्प मेंटली, बट बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल फेलियर he could not take the right decisions to close the deal. So sometimes being physically successful also becomes as important as being mentally successful. Now on a scale of 1 to 10, rate yourself, 1 being the lowest. अभी मेरे को भी इस पे काम करना है काफी वैसे, by the way, but it's work in progress. 1 being the lowest, कि मेरे को तो हर बीमारी है, हाइपरटेंसिव हो, डायबिटीज है, ट्रॉमा है, कुछ हेरिडिटरी है, मैं तो बिल्कुल उठ ही नहीं सकता, मैं चल ही नहीं सकता, मैं तो उठता हूँ और सांस चढ़ जाता है, that is 1. 10 is when you say I am absolutely healthy, my eating habits are healthy, I eat on time, I don't eat too much, I exercise, I meditate, I do yoga or I pray, and I am absolutely fit and fine. BMI जो मेरा वो normal है. Now you rate yourself. Where are you right now on a scale of 1 to 10 on that? तीसरा सक्सेस आता है फैमिली सक्सेस. Family success is from your parents, not from your wife or your children. FAMILY, father and mother, I love you. How much you respect and how much you follow your parents will decide whether you're successful in the family format or not. So now rate yourself in the relation you have with your parents. Because I am talking to students, I will only talk one way. Rate your success with parents. क्या आप उनकी बात सुनते हो? Do they see you as ideal children? क्या वो आपकी मिसाल देते हैं? क्या दूसरे आपकी मिसाल देते हैं कि अच्छे बच्चे हैं? On a scale of 1 to 10, rate. उसके बाद सक्सेस आता है वर्क, कर्म. एक टाइम था हम धर्म युग में जीते थे, और धर्म युग में जीने का मतलब क्या होता था कि जब लगा कि अब मोक्ष चाहिए तो चोगा वस्त्र पहना, कमंडल पकड़ा हाथ में और चले गए पहाड़ की तरफ मेडिटेशन के लिए. अब वो टाइम नहीं है, अब ये कर्म युग है. From your deeds and the work you do, you will become successful. So how successful are you at work? If you're a student, are you a dedicated student? If you are a housewife, are you a dedicated housewife? If you are doing a job, are you doing it dedicatedly? Rate yourself on a scale of 1 to 10. 1 being the lowest, 10 being the highest. Then comes charity. They say charity begins from home. दूसरों को ज्ञान मत दो, पहले खुद शुरू करो. और चैरिटी सिर्फ पैसे से नहीं होती है, चैरिटी टाइम से होती है, चैरिटी थॉट से होती है, चैरिटी इंटेंट से होती है. 10% of who you are should go to charity. That's the rule for every religion. It's a spiritual rule. Are you successful there? When we understood, me and my wife, when we understood this rule, 33% of our income
we started to put aside for God's work. So today, God is a partner with us in whatever we do. So charity is a big success. And my daughter, who's 10 years old, जब उसको पॉकेट मनी मिलती है, वो 10% निकाल के अलग जार में डालती है फॉर गुड वर्क. सो इट्स अ हैबिट. एक रुपए में 10 पैसे निकालने आसान है. जब 1 करोड़ आएगा ना, 10 लाख निकालना बड़ा मुश्किल लगेगा. So get the right habits. Then after charity comes finance. Finance, money, success does not mean making more money. Financial success means that the kind of money you are making is coming from an asset source, which means I don't have to actively work to make money. Do a job, it is important. But while you're doing a job, start to look at investments. So एक घर है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, वो घर अगर 10 करोड़ का भी है, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उससे कुछ आता नहीं मेरे को, वो मेरी लायबिलिटी है. बट एक घर है जो 1 करोड़ का है और उससे मुझे किराया आता है 30,000 रुपए का, वो मेरा एसेट है क्योंकि एक बार पैसा लगा दिया, एक बार ढंग से काम कर लिया, पैसा आता है. दैट्स फाइनेंशियल सक्सेस. सो ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग. लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना. बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब कहने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन फर्स्ट इंश्योर दैट यू आर फाइनेंशियली सक्सेसफुल, व्हिच मींस योर इनकम कम्स फ्रॉम एसेट बेस्ड सोर्स. एंड लास्ट सक्सेस इज द स्पिरिचुअल सक्सेस. एवरीथिंग इज इन अलाइनमेंट. जो भी आप धर्म फॉलो करते हो, यू हैव टू फॉलो द रिचुअल्स एंड द नॉर्म ऑफ योर रिलीजन. दैट्स स्पिरिचुअल सक्सेस. सो पहला प्रमाइस मेरा ये था, टू बी सक्सेसफुल. मनी इज नॉट एवरीथिंग. आपने आई होप अपने किसी पेपर के ऊपर ये सारी चीजें लिख ली हैं, ये 7 चीजें, एंड आपने अपने आप को रेट कर लिया है. Anybody who's already rated themselves, can you unmute yourself? Raise your hand, please. Okay, Abhishek Tiwari. Very good afternoon, sir. How are you Good today? afternoon. Very good, yeah, very good. सबसे high rating आपको किस sphere में है इसमें से? Sir, with family, because the bond with my parents is are very strong. They love me a lot. Very good, And very they good. care for me a lot. And I Very good. even do it for more than I have even cared for anything else, because I don't have any much precious thing more than that. So I have rated 9.5. I haven't given 10, Very good, very but I good. have given इसको है 9.5. ना, जब गर्लफ्रेंड आ जाएगी या बीवी आ जाएगी तब भी इसको 9.5 पे रखना. अच्छा. Actually, I'm committed right now, but still I'm going for 9.5 only. Very good, very good, very good. I'll tell you one thing. Why I asked this question. When you get married, this is for boy and girl both. Your spouse parents also become your responsibility. So you have to remain a 9.5 on that still. Samaan Actually, बनोगे तो sir, गड़बड़ है. Yeah. sorry to interrupt you. Actually, I'm the only child of my parents. I don't have any siblings, right? So I don't have any option to because I love my parents a lot. I can leave anyone for them. So that's why I don't have any option. So as I'm the only child, that's why. Good, good. I hope तेरी girlfriend नहीं सुन रही है बात. No, she knows everything. Okay, good, good. Someone else? Anybody else? Raise your hand, please. Okay, I can't see everybody, so I can't see all the hands raised. Okay, let me check with Priya Singh. Priya, can you hear me? Hello. Hi, Priya. Hello. So, what is the? Can you hear Hello. me, Priya? Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, what is Yes, the sir. highest rating you have in what sphere? Sir, I'm already living with my big family, and there is my father, my mother, and my 3 brothers, and I'm the small one. Oh, so you are pampered. Yes, sir. I'm absolutely pampered. Very But my brothers, they got already married. They have children, and the problem is this: that my father and my mother, that I have a huge gap between So, me and my that's okay. father and mother. That's okay. So what happens is when you have a huge gap, your brothers and your bhabis become like your parents. Yes. Because I know. उन्होंने भी उन्हीं से लिया ना सब कुछ.
So Yes, success sir. here is respecting their wishes, ensuring that you respect them as well because they're elder to you. Okay. Okay. Yes. What have you rated But yourself on charity? Do you do charity? yes, sir. Sometimes. Yeah. So make it a habit. Make it a habit. Right. Thank you. Yes, sir. Let's talk Thank to you. Sonam Malhotra. Yes, sir. Family. Okay. Very good. Very good. So I'm happy. So the Family, whole idea was family is everything for me, and very good. nothing is important as I'm also a single child for them. So they have given me everything, and I want to give them everything. Very good. Yeah, very good. So great. So I think my point is made. Just like you have family success, there are other successes also. Because family success तीसरे नंबर पे आता है mentally and physically. जब आप फ्लाइट में बैठते हो ना, तो एयर होस्टेस मेक्स एन अनाउंसमेंट बिफोर द टेक ऑफ. इट सेज दैट हवा के दबाव के कारण अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा. किसी और की मदद करने से पहले अपना मास्क लगा लेना. Why? Because you can only help someone when you help yourself. And same is with this also. Family is on the third number. Mental success, physical success, then family success. And of course, this is seventh sphere. So I hope you've rated that. Let's move on. Okay. पहली premise हो गई, money is not everything. Second is ensure it is your goal you are pursuing. You know, बड़ी बारी होता है ऐसा कि जो गोल होता है वो मेरा हमेशा नहीं होता. भैया ने बोला इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग कर ली, पापा ने बोला डॉक्टर बन गया मैं. एंड वी यूजली पिक अप समवन एल्सेस गोल. वो देखो शर्मा जी का लड़का, वो कितना बढ़िया कर रहा है, तो भैया हमारे को भी करना पड़ेगा. सो यू हैव टू फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, इज दिस योर गोल और समवन एल्स हैज गिवन इट? देवेश, यू कैन शेयर हियर द सेकंड पोल. Right, sir. Right, sir. We are sharing it. आपको एक पोल आ रहा है. द पोल सिंपली says that my goals are based on my own thought process or what my family wants me to do, but I'm also convinced this is right. What my family wants to do, whether I like it or not, I am not sure what my goals are. So if you can quickly submit the poll, we can then start moving on. So while you're doing this, it is also important to understand that अगर गोल नहीं होगा ना तो बहुत तहस-नहस हो जाती लाइफ. इमेजिन यू आर प्लेइंग फुटबॉल और दोनों गोल पोस्ट गायब है. थोड़ी देर बाद लोग पता है क्या बोलेंगे आके? अगर तो गोल है तो लोग कहेंगे वाह ये देखो फुटबॉल खेल रहे हैं, और अगर गोल हटा दूंगा ना लोग कहेंगे पागल हो गया क्या कर रहा है, ऐसी बॉल को मारी जा रहा है क्या? सो गोल इज जरूरी है, लेकिन गोल अगर पता नहीं है, अगर तुम खेल किस टीम के लिए गए हो, पता लगा अपनी टीम का ही गोल मार दिया, तो जो गोल है वो आपका अपना है या किसी ने आपको जबरदस्ती दिया है आपको? ओके, इज दिस डन? शुड वी मूव ऑन? Have you got it from all, Devesh? We've got 52 participants. We should ideally have about some 47 if I remove the faculty and myself. Have we got all the polls, Devesh? Should we move on? Yes, sir. Monica? Hello? Monica, No, ma'am? sir. 33 out of 50 right now. Good. So, Monica, while I will continue with the program and we'll keep putting on polls, if you can just keep on the chat, let people know if they've not done it so that we can then have a proper consensus towards the end of the presentation. Huh? Okay, sir. Okay. Very good. So, my premise is second cheese. After money is not everything, you have to have success in all 7 things. Second is, you need to know if you are pursuing your own goal. Because if you don't know where you're going, you will never know when you get there. Alright? Okay. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है. आपको पेपर पे लिखना है, पेपर पे लिख लो इस चीज को. जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हो, when you're changing in life, the formula is D into V into F always should be greater than R. उल्टा शुरू करते हैं. R क्या है? R is resistance. जैसे दरवाजा है, अगर दरवाजा खोलना है और उसके अंदर मट्टी फंसी हुई है या उसके हिंज के अंदर रस्ट लगा हुआ है, तो दरवाजा खोल नहीं पाओगे आप. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है.
कोई चीज को धक्का मारना है और पहिया अगर ब्रेक लग रखी है तो रेजिस्टेंस है। लाइफ में भी आप एक स्टूडेंट थे स्कूल के, अब आप कॉलेज में आ गए हो, फिर आप नौकरी करोगे, फिर आप आगे लाइफ और बढ़ेगी। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर पहलू पे एक रेजिस्टेंस आती है। पहली क्लास में बच्चा अच्छे नंबर लाके दूसरी क्लास में तो चला जाता है, लेकिन दूसरी क्लास में जाते ही जो चीज पता थी वो खत्म, अब नई चीज सीखनी पड़ेगी। तो उस रेजिस्टेंस को बच्चा तोड़ता है तो दूसरी क्लास में भी अच्छे नंबर लाता है। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज। कुछ भी करने के लिए, सीखने के लिए एक रेजिस्टेंस होती है जो रोकती है मुझे। और रेजिस्टेंस को तोड़ के जब आगे बढ़ते हैं, इनर्शी को तोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो ही हम सक्सेसफुल होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू डिससैटिस्फैक्शन विद करंट सिचुएशन। मैं जैसा हूं, अगर मैं खुश हूं उससे, तो वैल्यू क्या होगी? 0। तो फॉर्मूला में कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। सो देयर हैज टू बी डिससैटिस्फैक्शन। इफ आई एम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आई एम हैप्पी द वे आई एम, तो फिर तो मैं भगवान हो गया। सो श्योरली देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन कि यार मैं जैसा हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, या मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मेरे को डिग्री चाहिए। देयर हैज टू बी सम डिससैटिस्फैक्शन जिसकी वजह से आप कुछ करना चाहते हो। So when you're dissatisfied about your life or current situation, you have to multiply it with the vision of the future. Setting the right goals. You are clear कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ. What is my vision of the future? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ. I want to do my masters and become into sales and marketing. Financial product बेचनी है मुझे. मुझे operations में जाना है. मुझे data scientist बनना है. So there is the vision of the future, which comes from your own goals, and then you multiply it by फर्स्ट एक्शन। अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मैं जैसा हूं, और मेरे पास रीजन भी है कुछ आगे करने का, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये फॉर्मूले पे काम करना है आपने। दिस इज द होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू। D into V into F should always be greater than R. R is resistance. आपको क्या रोकता है स्पिरिट पे? हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है, हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है, हो सकता है मेरे पास इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे स्कूल में, whatever the reason, कुछ भी रेजिस्टेंस होगी। If you can get this formula right, you'll be successful. मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरे मार्क्स थे, जब मुझे अभी भी याद है, प्री बोर्ड में मेरे ख्याल में इंग्लिश में पास हुआ था और शायद हिस्ट्री में पास हुआ था। बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर ऐसे आए थे। सारे सब्जेक्ट में फेल था मैं। और मेरी सिस्टर के आए थे 98 मैथ्स में, और वो फिर भी रो रही थी क्योंकि 2 नंबर कट गए उसके। और मुझे इस बात का डर लग रहा था कि घर जाके इसको तो शाबाशी मिलेगी क्योंकि इसके 98 आए और 2 नंबर के रो रही है, और मेरी जम के पिटाई होगी कि तेरे को शर्म भी नहीं आती है, 3 नंबर सब्जेक्ट में फेल हो गया। और मैं उसे चुप कराते बोल रहा था कि चुप हो जा मेरी माँ, तेरे एक सब्जेक्ट में तो मेरे तीनों सब्जेक्ट पास हो जाते हैं। So I was happy with my life, therefore I didn't do anything. But the day I had dissatisfaction, I started to do something, and this formula started to come alive. The difference between successful and failure is you being able to work on this formula. Okay? तीसरी चीज है having a vision of the future. Do you have the vision? आपको मालूम है कि करना क्या है, इससे होगा क्या? Do you know what will happen? आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? Can you beat it? पोल 2 का रिजल्ट, मनदीप सर, पोल 2 का रिजल्ट दिखाना है, सारे पोल एक साथ बाद में। वो एंड में करेंगे, बिल्कुल एंड में करेंगे, वो एंड में करेंगे। इस फॉर्मूला में एक बड़ी जरूरी चीज है विजन। मैंने बोला आपको, विजन इज द एबिलिटी टू डे ड्रीम विद अ पर्पस। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है। Vision is when you know what you want to do. मेरी vision थी that I want to have a house which is 5,000 square feet. मेरे लिए actualization थी। I will be a CXO at the age of 38. 38 साल की उम्र तक मैं किसी कंपनी को लीड कर रहा हूँगा, 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी को। ये विजन मेरी थी जब मैं था 21 साल का, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं एक एग्जीक्यूटिव तरह काम कर रहा था, बॉस से गाली खाता था,
और प्रेशर में, स्ट्रेस में काम करता था, तब मैंने विजन बनाई थी कि एक दिन मैं कंपनी को लीड करूंगा, मेरे पास ये सब कुछ होगा। एंड व्हेन यू हैव अ विजन ऑफ द फ्यूचर, आपके पास एंड डिफाइन हो जाता है। जैसे गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप में एक नीले रंग की डॉट होती है जब आप मैप खोलते हो, वो बताती है आपको यू आर हियर, और उसके सहारे से आप वहां जा पाते हो जहां आपने जाना है, पॉइंट बी। विजन ऑफ द फ्यूचर इज पॉइंट बी डिफाइंड। आर यू विद मी? Okay, sorry. There was a poll that I wanted to send. Can you please share the poll 3? Poll 3 is, I have a clear vision of my future self. मैं कैसा होऊंगा आज से 5, 10, 20, 50, I don't know. मैं कैसा होने, मेरी जिंदगी कैसी होने वाली है? You are very clear. It's just a simple yes or no poll. Let's quickly do this poll and move on. इसके बाद आपका आता है एक और जरूरी चीज। Now that I know my goals, now that I know vision is important, I need to now break them down into smaller pieces. Smaller pieces how? कुछ short term goal होंगे, कुछ long term goal होंगे, कुछ mid term goal होंगे, कुछ पैसे के लिए गोल होंगे, कुछ चैरिटी को लेके गोल होंगे, कुछ फैमिली के गोल होंगे, कुछ हेल्थ के गोल होंगे। Break down your goals. If we are done with the second, third poll, let's move to the fourth poll. Breaking down your goals is very important. And if you want to really, truly break down the goals, you need to have SMART goals. What are SMART goals? S stands for being specific. हवा में बात मत करो। Be very specific क्या चाहिए। अगर माँ को जाके बोलोगे मुझे आज वो खाना है जो मुझे अच्छा लगता है, तो माँ क्या बोलेगी? क्या अच्छा लगता है तेरे को? स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना। आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ और बोलो मुझे एक टिकट दे दो, तो वो क्या पूछेगा? कहाँ के लिए चाहिए? आप कहोगे कहीं के लिए भी दे दो, तो वो आप पे हंसेगा ना। चलो आपने बोला मेरे को यहाँ से जाना है बेंगलोर, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? कब जाना है, कितने बजे जाना है, कौन सी क्लास में जाना है, बिजनेस क्लास में जाना है, प्रीमियम में जाना है, इकोनॉमी में जाना है। सो गोल्स है। सर पोल 4 दिखा दें, पोल 4। हाँ जी प्लीज प्लीज भेज दीजिए। ओके, सो आपका पोल 4 भी आ गया। प्लीज इनको पोल्स को करते जाइए, बिकॉज आई विल हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, और आपको भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। So goals have to become smart, specific, measurable, attainable, relevant and time based. हवा में नहीं, very specific. Okay? I have clearly defined my short-term goals, mid-term goals and long-term goals. It's a yes or a no question. Okay? Very good. Once you've done that, ये नौकरी के लिए नहीं, ये लाइफ में हर चीज के लिए जरूरी है। You have to organize your day. Believe me, दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता। आजकल तो नेटफ्लिक्स पे बिंजिंग चलती है तगड़ी, एक ही बार में गेम ऑफ थ्रोन्स की चलो देख लो, 10 सीरियल देख लो। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि बाथरूम में ही बच्चों का टेबल लगा दें क्या, क्योंकि एक बार फोन लेके घुसते हुए बाहर ही नहीं आते। रात को नींद नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी देर और देख लूं जरा, थोड़े से सीरियल और। सो वी नॉट ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स वेल, एंड व्हेन वी डोंट ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स वेल, इट रियली हर्ट्स अस इन द लॉन्ग रन। सो एक सिंपल है, मेरे गुरु मुझे हमेशा बोलता है, या तो तुम दिन को चलाते हो या दिन तुम्हें चलाता है। You can paste this on your paper. Your life revolves around everything that is urgent and important. Okay? देखो कुछ भी हम करते हैं ना, वो फालतू तो होता ही नहीं ना, वो अर्जेंट होता है या इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। Now if you look at this quadrant,
If you look at this quadrant carefully, there are 4 quadrants. So पहला quadrant क्या है मेरा? पहला quadrant ये है जहां पे we have things that are urgent and important. It says you have to manage this. I'm sorry, सामने screen आ रहा था, I could not see the what is written. Now, what are the things that you can manage? These are things that are usually emergencies, that are urgent and important. अभी करनी है, ये अभी होनी है. अब ये ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम से आती है अकस्मात. You need to manage it. Then there are things that are urgent but not important. You have to learn to avoid these things. ये कौन सी चीजें होती हैं? किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी की गर्लफ्रेंड किसी से नाराज हो गई, अब वह चौधरी बने हुए हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. वो बॉस की बेटी की शादी है और बॉस को वेन्यू ढूंढने हैं, तो इसलिए मैं बॉस की हेल्प कर रहा हूँ. वो 4 घर छोड़ के चौबे जी की बिल्ली गुम गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ. बिलीव मी, फालतू काम वेले लोगों को मिलते हैं, और वेला इंसान कौन होता है? जो फालतू काम करने में मजे लेता है. सो अगर आप है majelelo.com, तो ये आपके लिए नहीं है. बट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू अवॉइड दिस क्वाड्रेंट. तीसरा क्वाड्रेंट है आपका where things are not important and not urgent. गेम ऑफ थ्रोन्स देखना और गैंग्स ऑफ वसेपुर देखना, और अब मिर्जापुर का पार्ट 2 भी आ गया वैसे बाय द वे. ये है वेली चीजें. इसमें जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला. टीवी के उस तरफ जो इंसान है ना, वो तो पैसा कमाता है, इस तरफ वाला कभी नहीं कमाता, देखने वाला कभी नहीं कमाता पैसा. So avoid these. I'm not saying they're bad, but अगर लाइफ में कुछ करना है आगे, तो पहले वो कर लो ना. If you have time to watch your Facebook account page and keep scrolling, मेरे हिसाब से लगता है कि आज की जो जनरेशन है ना, उनका सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मसल है ना शरीर में, वो ये अंगूठा है, ये वाला. क्योंकि वो ऐसे फोन को लगे रहो, पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं. So don't avoid those things. Gossips, gaming, PUBG ऐसे हो गया जैसे मतलब वो कोई धार्मिक चीज है बड़ी. बच्चे मोबाइल खरीदते हैं कि इसमें PUBG चलेगा क्या. मेरे कुछ पुराने आईपैड और फोन पड़े थे, मैंने कहा चलो इनको OLX करते हैं. जितने यंगस्टर्स का क्वेरी आई है, यही आया है, इस पे PUBG लोड हो जाएगी क्या. Avoid these. They don't help you anywhere. The quadrant you need to stay in is the quadrant which is not urgent but important. Urgent होता है टाइम से, अभी करूंगा तो नहीं तो गड़बड़ हो गई. Important होता है ये जरूरी है मेरी जिंदगी के अंदर. Okay? Stay in the focus quadrant. यहाँ पे learning है, यहाँ पे development है, यहाँ पे nourishment है. So if you really want to succeed in life, pole 5 डाल दे देवेश. Right, sir. pole 5 डाल दीजिए. So pole 5 जो है अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा that इन quadrants को मद्देनजर रखते हुए do I plan my day well? पापा ने बोला बिजली का बिल पे करा, ये पकड़ पैसे करा, लेकिन भाई साहब बिजी हैं PUBG खेलने में, which is not urgent, not important. अब बिजली का बिल पे करना जरूरी था, लेकिन अभी 1 हफ्ता है, it was not urgent. लेकिन नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट वाले क्वाड्रेंट में रहते रहते 1 हफ्ता निकल गया. अब बिजली कट जाएगी अगर बिल नहीं पे किया, तो अब आपने क्या किया, जबरदस्ती उसको उठा के आपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट में डाल दिया, जबकि उसको वैसे भी मैनेज किया जा सकता था. सो लाइफ, सक्सेस, हैप्पीनेस happens in this quadrant, which is a focus quadrant. Things that are important but not urgent. Guys, I hope you are okay. मतलब ऊपर से ओवर ट्रांसमिशन तो नहीं जा रहा. एक आध कोई अपना प्लीज अनम्यूट करके बोलो कि जी सर एवरीथिंग इज फाइन. Yes, sir, everything is fine. Everything is going very well.
तो मेरा दोस्त है, लोग समझेंगे तेरे को मैंने पैसे देके बैठाया हुआ है यहाँ पे। और भी कुछ जवाब दे दो। अभिषेक तिवारी के साथ। Sir, everything is fine. Everything is वेरी fine. गुड, थैंक यू। Sir, fine. Everything is fine. Everything is देखो fine. मेरे ना Sir, you're enjoying, मेरे right? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी Everything is शादी fine, को ना sir. 20 साल हो गए हैं, शादी को 20 साल हो गए हैं, और मेरे टीनेजर बच्चे हैं, तो मुझे आदत सी पड़ गई है इग्नोरेंस की, और लोग सुनते नहीं मेरी बात जल्दी, इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ओके, देन बहुत ही क्रिटिकल है, डोंट फॉरगेट द बिग पिक्चर। आप क्या हो उससे कई जरूरी है आप अपने आप को कैसे देखते हो। You will always have to think of something, then think big. अगर सोचना ही है कुछ तो बड़ा सोचो ना। देखो पैसा कमाओगे तो इनकम टैक्स लगता है, टैक्स लगता है, कुछ बेचोगे तो सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता। और सोचना है तो बड़ा सोचो, थिंक बिग। ये ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, इसको हम लिव लाइफ किंग साइज भी कहते हैं, बट आई वांटेड टू बी जेंडर न्यूट्रल। नहीं तो मुझे सारे बोलते दैट व्हाई ओनली किंग साइज, व्हाई नॉट क्वीन साइज, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। थिंक बिग, दिस इज जेंडर न्यूट्रल। ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचो। एक किताब है, अगर आप किताब वो ले सकते हैं, मेरे पास शायद पड़ी हुई है कोई किताब वो। दिस इज द बुक, दिख रही है आपको बुक? ये अभी किसी के लिए मंगवाई है, ये पैक भी है, किसी के लिए मंगवाई है अभी मैंने ये। इस किताब का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यू सी दिस? बड़ी सोच का बड़ा जादू। दिस इज रिटन बाय अ पर्सन कॉल्ड डेविड श्वार्ट्ज। ये आपको Amazon पे, आपको फ्लिपकार्ट पे हर जगह मिल जाएगी। मेरे ख्याल 150-200 रुपए की किताब होगी। पिक दिस बुक अप। जो किताब ही कहती है बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये पढ़ लेनी चाहिए। इस पॉइंट में मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, इफ यू वांट टू थिंक बिग, यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग पीपल हु आर ऑलरेडी इन लाइफ वेयर यू वांट टू बी। मनोहर कॉमिक्स, चाचा चौधरी और किरगी का कहर, डायमंड कॉमिक्स और नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स और सस्पेंस नॉवेल्स, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हैं उनकी आदत डालो। मेरे पीछे आपको जो पूरा रैक दिख रहा है, आई रीड 3 to 4 बुक्स एवरी मंथ। सेल्फ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न फ्रॉम पीपल who already attained success और जिनको आप देखते हो एज एन एपिटोम ऑफ सक्सेस, उनकी किताबें पढ़ो। बहुत नॉलेज बहुत है मार्केट में, इसको लेना शुरू करो। ऑलराइट, ओके। That brings me to the fact that in case you want to, oh thank you for putting the poll please, very good. In case you want to be successful, you have to find yourself a coach or a mentor. अभी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस बात पे। टीचर, कोच, मेंटर, इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का आपकी लाइफ पे प्रभाव अलग है। आपके हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, एंड देन देयर इज स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं IQ वर्सेस EQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट। इस पूरे क्वाड्रेंट पे, ग्राफ पे अगर आप देखते हो तो टीचर्स, जो आपका अध्यापक, जो आपका स्कूल में टीचर था, प्रोफेसर है, उनका इम्पैक्ट आपके स्किल डेवलपमेंट पे है, वो शॉर्ट टर्म है। आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाना, आपको कोई ज्ञान देना, आपको पास करवाना किसी सब्जेक्ट में, उनका शॉर्ट टर्म गोल है, because they will actually help you to learn something to do right now. कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कोच भी बन जाते हैं हमारे, हमें आगे गाइड करते हैं, लेकिन कोच स्पेसिफिकली ऐसे इंसान है जो आपको थोड़ा सा आगे का विजन देता है। नौकरी ज्वाइन करी है तो बॉस आपको सिखाता है कि नौकरी के अंदर आगे काम कैसे करना है, कैसे सीखना है। सो दैट इज अ कोच। बट अ मेंटोर
जो आज की डेट में नहीं मिलता। पुराने 100 साल पहले लोग अपने घर से 12 साल के लड़के को लड़की को कहते हैं चलो जाके गुरुकुल में पढ़ाई करो, गुरु ढूंढ, क्योंकि गुरु बताएगा लाइफ में कैसे जीना है। और सारी जिंदगी का कुल गुरु बन जाता था, हर चीज के लिए मुझसे सजेशन लेते थे। आज ऐसा नहीं है। सो यू टू फाइंड अ मेंटोर। When I started my mentoring practice, sole purpose was that people would call me for advice. And you can't just give an advice, you have to be focused. कि एक आदमी आपके साथ आया, अगले हफ्ते आएगा तो वो पता तो होना चाहिए पिछले हफ्ते क्या बात हुई थी। So having a right mentor is very important because these are the people who will guide you throughout your life and ये long term effect है. Okay? So ask yourself, do you have a mentor or a coach? Then comes the fact that life will not work out well every time. Devesh, please, fold number 7 दीजिए. Every time, everything will not work out. Period. There will be mishaps. There will be incidents which you don't like in life. And life will not work out the way you want it to work out. But you have to learn how to accept it. The very difference between a person who has character is someone who manages himself or herself when things don't work out. देखो जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो आपको कैरेक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट कैरेक्टर बनता ही नहीं है। कैरेक्टर तो तब बनता है जब नुकसान होता है, जब धक्का लगता है, जब धोखा होता है, जब कुछ चीज छीन ली जाती है, जब कुछ चला जाता है आपके हाथ से, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, तब आप क्या करते हो, वो है कैरेक्टर। Character is entirely a decision. I will not be upset is a decision. I will stand up again and fight, decision. I will not get angry, decision. I will be thankful for everything, decision. I will forgive people, decision. It is all a decision. So if you are able to accept what is, let go of what was, and have faith in what will be, you'll be happy. It's a part of staying focused and successful. Okay? We are moving towards the end and then we'll have a discussion in open house also. Then comes being consistent. देखो दिवाली में ना एक रॉकेट आता है, रॉकेट, उसको जब माचिस लगाओ ना तो शिव आवाज आती है, बहुत ऊपर जाके हवा में फटता है, बड़ा सुंदर लगता है, पर वो एक बार होता है। अगर इलॉन मस्क हो ना तो बार बार रॉकेट को ऊपर ले जाओगे, वापस भी ले आओगे। कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस। एक आध बार सुपरस्टार नहीं बनना। जो सुपरस्टार होता है ना सुपरस्टार मूवी में, वो बार बार हिट देता है आपको। जो एथलीट ओलंपिक्स में जाता है ना, वो बार बार जीतता है। सो बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू। पानी की बूंद भी पत्थर पे बार बार गिरती रहती है, पत्थर तोड़ देती है। एक बहुत बचपन में हमारे को हम कविता सुनते थे, करत करत अभ्यास है जड़पति हो सुजान, रस्सी आवत जाता है सिर पर पड़े निशान। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि कुएं की जो रस्सी भी है ना, जब पत्थर पे आती जाती है, रस्सी का क्या वजूद है, पत्थर से स्ट्रांग है, लेकिन रस्सी भी कंसिस्टेंटली आती जाएगी, पत्थर भी कट जाता है। सो आपके पास पूरी जिंदगी है आगे, आपके पास ऑलमोस्ट 40 साल के एक्टिव टाइम है काम करने का। So don't do anything short term. Be consistent. Okay? I think we are just about 2 more slides left. Can you please share the poll 8? Stay positive. आजकल जरा पॉजिटिव ध्यान से, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, वो पॉजिटिव मत रहना, उसमें नेगेटिव ही रहना। लाइफ में पॉजिटिव रहना थोड़े से। ओके? स्टे पॉजिटिव। एक कहावत होती है, जो जब चिड़िया को देखा, ये बात बहुत सालों पुराने एक विद्वान थे जिनका नाम था सन त्सू। इन्होंने किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, बहुत तगड़े जनरल थे ये। तो इनके लिए था कि हम कैसे अटैक कैरी करेंगे, इतना सब सामान कैसे लेके जाएंगे। तो उसने चिड़िया को देखा उड़ते हुए, तो उसने बोला ये चिड़िया कैसे उड़ रही है? कहते क्योंकि वो चिड़िया है। कहते लेकिन उड़ कैसे रही है, हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो वो हंस के बोला, उसके साथ जो उसके जनरल था, कहता क्योंकि हम बहुत भारी है। तो उसने बड़े प्यार से बोला, कहता है इसका मतलब कि उड़ना है तो जो चीजें मुझे वे कर रही हैं, अगर मैं हटा दूंगा तो मैं भी उड़ पाऊंगा, हाँ या ना?
एंड दैट्स फैक्ट इन लाइफ। अगर लाइफ में उड़ना चाहते हो ना, अगर लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो, उड़ने का मतलब ये नहीं कि छत से कूद जाओ, मैं पॉजिटिव हूँ तो कूद जाओ। मैं कह रहा हूँ लाइफ में बड़ा बनना है, इफ यू वांट टू स्टे पॉजिटिव, you have to just let go of everything. You know what weighs you down? किसी के लिए गुस्सा रखा है दिल में, किसी के लिए आपने अपसेट रखा हुआ है, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, वो ऐसा है, ये वैसा है, वो सब छोड़ दो। एक प्रोफेसर था कॉलेज में, उसने एक पानी का गिलास लिया, मैं पानी का गिलास पी भी लेता हूँ, उसने पानी का गिलास लिया, उसने बोला ये पानी का गिलास कितना भारी है। तो किसी बच्चे ने बोला सर ये 200 ml का गिलास है, किसी ने बोला इसमें 150 ml है, किसी ने बोला 300 ml है। तो प्रोफेसर ने बोला कि इस गिलास को पकड़ो, भारी लगता है क्या? तो बच्चे ने बोला नहीं सर, भारी तो नहीं लगता। कहता आप इसको 10 मिनट पकड़ के रखो, भारी लग रहा है? कहते हाँ जी सर। कहते अगर इसी को 10 घंटे पकड़ के रखोगे तो क्या होगा? कहते सर मसल में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कहते और इसी को 1 दिन पकड़ के रखोगे तो क्या? सर बिल्कुल ही अकड़ जाएगी बॉडी। और कहता फिर नुकसान ज्यादा होगा कि कम होगा? कहते सर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मेरा बिल्कुल बाजू अकड़ जाएगी। कहते हैं लाइफ में तुम जब नेगेटिव होते हो और लोगों के प्रति तुम किसी चीज की नफरत रखते हो, एंड दिस विल हैपन इन लाइफ बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर यू विल फील बैड अबाउट थिंग्स। वो पानी के गिलास की तरह है, अगर तो कुछ बुरा लगा आपने रख दिया उसको तो प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अगर पकड़ के रखोगे उसको तो आपको नुकसान देने वाला बहुत तगड़ा। कितना? जितनी देर से पकड़ के रखोगे। सो स्टे पॉजिटिव, एंड स्टेइंग पॉजिटिव अगेन इज अ चॉइस। मैं जो भी बातें बता रहा हूं आपको इज अ चॉइस, ऑलराइट? ओके, देन आई थिंक टुवर्ड्स द एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पीपल। जो लोग आपको वे डाउन करते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव देते हैं, उनके साथ दोस्ती मत रखो। ये तो माँ बाप भी बोलते हैं मेरे, ये तो भैया भी बोलते हैं मेरे, ये सब बोलते हैं। याद रखो, मेरे को एक मेरे गुरु मेरे को आई थिंक अबाउट 15 साल पहले की बात है, मैं उनसे पूछ रहा था कि सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं ना, मुझे मौका नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि पेपर पेंसिल ले। सर मैं आपसे बोलूंगा, अभी तो खैर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, बट ये जिंदगी में याद रखना ये टेस्ट। उन्होंने बोला कि अपने 5 दोस्त जिनसे तू रोज बात करता है उनका नाम लिख। मैंने नाम लिख दिया। कहता है इनकी कितनी इनकम है, आमदन लिख इनके आगे। मैंने उनकी कितनी इनकम थी वो लिख दी। उन्होंने बोला अब इन 5 जो इनकम है टोटल कर और 5 से डिवाइड कर, जिसको मैथ्स में कहते हैं एवरेज। और जो नंबर आया ना वो कहते हैं ये तेरी इनकम है, आमदन तेरी यही है। और फैक्ट था बात, जब 500 दोस्तों की इनकम को इकट्ठा किया और 5 से डिवाइड किया तो जो नंबर आया वो मेरी आमदन थी। तो मेरा गुरु कहता है अगर दोस्त नहीं बदलेगा तो आमदन नहीं बदलने वाली। So if you want to be better in life, have company of people who are better than you in life. मेरे तो स्कूल में भी माँ बाप कहते थे अच्छे बच्चों से दोस्ती करो। मैं अपने मन में कहता था लेकिन उनके माँ बाप भी तो यही कहते हैं, तो क्यों मेरे से दोस्ती नहीं करता? लेकिन when you are growing in life, you can do that. Have good friends. Have friends who have a positive influence on yourself. Okay? And towards the end, very important. हमेशा अपने आप को याद कराओ कि मैंने ये गोल रखा क्यों था पहले। मैंने जब मेरी लव मैरिज है, आपको मतलब मुझे लड़की कौन देगा, मुझे फंसानी पड़ी इसलिए। तो मैं जब उसके पास गया तो मैंने सोचो ऐसे बोला होता उसके पिताजी से, मैं आपकी लड़की शादी करना चाहता हूँ। और वो हिंदी पिक्चर डायलॉग होता है, चेक काट के देते, ये लो 1 करोड़ रुपया, मेरी बेटी शादी मत करो। और मैं कहता ओके, चेक उठा के चल पड़ता। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्या होता है, आप अपनी डिसीजन पर अड़े रहते हो, जो मर्जी हो जाए मेरे को तो शादी करनी है, हाँ या ना। सेम इज विद लाइफ, गोल कैन नॉट चेंज, डेट कुड चेंज, कुछ हुआ आगे पीछे हो गया, बट गोल थोड़ी ना बदल जाता है। चाहिए तो यही चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। वो कैसे होगा? जब आपकी दीवार पे, आपके रेफ्रिजरेटर पे, आपकी कबर्ड पे, आपके बाथरूम के शीशे के ऊपर वो सारे गोल लिखे होंगे जो आप करना चाहते हो। मैं ऐसा करता था, मैं स्केच में लेके ना, मेरे पास अभी जो पेन पड़े हैं, मैं ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये बोर्ड मार्कर है। मैं दीवारों पे हर जगह पे अपने गोल लिखता हूँ। जब मैंने लिखने शुरू किया था तो मेरी बीवी कहती है कि क्या कर रहे हो, दीवार खराब कर लोगे।
मैं कहा चिंता मत कर, जो लिखे ना गोल पूरे हो गए तो घर ही बदल दूंगा, चिंता मत कर। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट गोल्स आर। कभी सोच के देखो कि आपके किचन गार्डन पे कोई गंद डाले तो आप उसे गाली दोगे, फिर से गंद डाले शायद आप मारपीट कर लोगे, लेकिन दिमाग में जो आपको सारी चीजें पूरी करके देगा, लोगों को गंद मत डालना दो इसके अंदर, इसे प्योर और क्लियर रखो। सो कीप क्लियर why you are doing what you are doing, and journey will be amazing. So these were the summary, and I think in whatever time I had, I wanted to just squeeze everything and quickly give it to you. If you can also share the poll 9, that will be interesting. I have shared my email ID also with you. You can follow me on my Facebook account, my YouTube account, or my Instagram account. You can visit my website to understand the kind of work that I do. I work with a lot of youngsters, and I really enjoy working with people who are under 30, because there's so much like a sponge who absorb, की जो absorption शक्ति है इतनी ज़्यादा होती है, that बात करके काम करके मजा आता है. So I hope that whatever nuggets I've given you, they'll come handy to you, and I hope you will be successful in whatever you're doing. You are a part of a great university. I hope you make them proud. I hope you make yourself proud, and I hope you make your community and your family proud. So that's all from me. If there are any questions, I'll be more than happy to take them. Yes. I'm hurrying up because I thought everybody would want to have some questions. So इसलिए मैं last के 5-10 मिनट छोड़ दिए थे. Yes, Devesh. I'm done. So any questions? I'm more than open. अच्छा, टीचर ही पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट नहीं पूछना है, टीचर ही पूछ सकते हैं. Anybody wants to ask any question, you may ask to right. Hello, sir. Hello, hello. Am I audible? Hello. Yeah, but you're not visible. You're audible. So there is some Okay. network issue there. Yeah. Earlier, you said that you were working with this and this corporate sector. So I have a question to you and all the teachers present here. That when we study about management, leadership, and all the topics in the class, that is all the definitions and theories. So and you're actually applying in real life. So my actual question is how it feels when you first contact with your office colleagues, and how did it feel while working with the office in burden and all the things? Okay. Great question. Great question. क्या नाम आपका? Sir, Priya Singh. Priya. Yes. Priya, you know, the difference between an architect making a blueprint and a civil engineer making a building is the same difference in building a degree in a college and then actually going and building a career. So they are both important, symbiotic, but they are absolutely different experiences. Theory is important. Only theory is not everything. Practical is important, but without theory, you don't know what to build. So when you do this for the first time, when I went for my first job, there was a very high anxiety was very high, because there were new people. Yeah. We were accustomed to having friends, our friend circle. And I realized very soon that if I start to find comfort, I will do something small. But if I stay discomforted for some time, I'll make it big. Yes, sir. So when you start your job for the first time, it will be very, very interesting, because nothing that you've learned, you will be able to apply in the first 1 year. Yaad rakhna is cheez ko. Only after your first year of work, you will start to take experiences from your college, from your studies, from your subject, and start applying them. इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो सारे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अपने आप को खुद ही पर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ के बता दे रिजल्ट क्या है. You have to become so powerful yourself that when you venture out in the world accepts you with open arms rather than you run to them with open arms. So it will be very interesting. It will be very, very different. You have not prepared for this. It will be something which is cherished,
पहला साल नौकरी का कभी नहीं भूलेगा। ओके? Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? देखो, सवाल नहीं पूछोगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने या तो बहुत ही बढ़िया काम किया या सब कुछ ऊपर से निकल गया। मैं हैदराबाद में था और 200-250 बच्चों को एड्रेस कर रहा था मैं, और मेरी गाड़ी एक्चुअली स्टार्ट तो पेट्रोल पे होती है, फिर सीएनजी पे आ जाती है, तो मैं अंग्रेजी में स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं हिंदी पे आ जाता हूँ। तो मैं बड़ा अपना हिंदी में आ गया और मैं आधा घंटा बोला और बिल्कुल पूरे ऑडिटोरियम में शांति। मैं बड़ा खुश था, मैंने गुड जॉब बंदी। मैंने पूछा, मैंने कहा समझ में आ गया? एक बंदा कहता है हिंदी नहीं आता। तो मुझे बताओ, सबको समझ में आ गया क्या? हाँ जी, कोई क्वेश्चन आया था अभी चैट में भी देवेश। Another question is from Firoz Alam, sir. Do you think that someone can motivate you? ये क्वेश्चन मेरे लिए है या जनरली पूछ रहे लाइफ में? हाँ सर, sounds like it is for you on. So पहले तो जनरल बता देता हूँ। You cannot get motivated. You have to first get inspired and then you can get motivated. ये याद रखना हमेशा। And inspiration is inside out, not outside in. मेरे अंदर ही चिंगारी होती है जो जलती है, तो मेरे को लगता है कि हाँ ये करना है। अगर किसी को आप मोटिवेट करते हो जबरदस्ती आउटसाइड से, that's called hypnotism and that's called manipulation. If you really want to get motivated, you have to feel inspired. I was not a good student. I was not good in studies, but I was amazingly intelligent. And I felt inspired with people when I read their autobiographies and their life autobiographies. I saw that what was more important was to learn new things, learn new experiences. And that is what motivated me always. Okay? I hope I answered this question. Sir, Next question. Yeah, Abhishek, please. Yeah, sorry to interrupt you, sir. Sir, actually, I use Pinterest application. If you have heard about it, I get many motivational quotations from there, and I personally download it too. So, sir, does these quotations help you to maintain the zeal of motivation and perseverance? Does they really do? Because I literally download many motivation quotes in my phone. एक पानी का झरना है, तू कितना पानी कैरी कर सकता है ये बता, जितना तेरा बर्तन है। अगर हाथ में चुल्लू लेके बढ़ा है तो इतनी सारी मोटिवेशन भी आ जाएगी ना रोज, तेरे पे कुछ नहीं आने वाला। सो याद रखो, आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट मोटिवेशन यूनिवर्सिटी। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात गुड नाइट तक, भक्ति से लेके मोटिवेशन इंस्पिरेशन तक, और स्टोरीज से लेके जोक्स तक सब आता है। आपके दिमाग में फिल्टर है जो आप डिसाइड करोगे आपको क्या मोटिवेट करता है। Yes, there's a lot of information out there, and if you are initiating a step towards taking this for yourself, that's the first step to show that you are interested in remaining motivated. But find what inspires you first. इस वर्ड को जरा डिक्शनरी में देख के समझ लेना, ये सिर्फ अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, समझना पड़ेगा। हिंदी में प्रेरित कहते हैं, लेकिन प्रेरणा is not something which completely explains the word inspire, but find what inspires you and then only put stuff that will motivate you for that. I can look at a very good video and feel motivated to make bread, but I might end up burning the whole kitchen. Only if it inspires me to become a chef or a cook will I get motivated there. So be very careful what you put inside. आज का जमाना information overload का है दोस्त. Have the filter yourself to decide what you want. Okay? But it's a good habit if you are actually taking a step to registering there. Baki, register to my channel. I also do the same thing and try to make stories. So you can listen to that also on the YouTube channel. Sure, Yes, sir, please. अपनी दुकानें बेच लीजिए ना बीच-बीच में साथ-साथ. हाँ जी. Yeah, sure. Next question is from Apurva Singh. She is asking, sir, which is your favorite book that has proved life-changing for you? My favorite book has been Science of Getting Rich by Dennis Bottle. आप लोगों ने एक किताब सुनी होगी, The Secret. The Secret ऐसी किताब थी जिसने बड़ा धूम मचाया था, इसकी मूवी भी आई थी और ये बहुत लोगों ने देखी है। ये कमर्शियल व्यू है। जब शुरू में उस मूवी में जब मैं देख रहा था सीक्रेट, उसने बोला कि मेरे पिताजी की मुझे एक पुरानी किताब मिली
और उस किताब से मैं इंस्पायर हुई। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि इसको वो किताब कौन सी मिली, पहले ये बताओ। और वो किताब थी 1903 में लिखी गई बाय डॉक्टर डेनिस वेटल। डेनिस वेटल ने लिखी थी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर कोई किताब ने मेरे को बदला है, मेरे अभी भी रोमटे खड़े में बात कर रहा हूँ इस किताब की, मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा होगा उस किताब को। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। एंड अगेन, richness is not just money. It's in character. It's in happiness. It's in joy. It's in acceptance. It's in spreading love. The science of getting rich. Yeah. Another question is from someone who has asked me not to name him. One of our ऐसा क्या question है? One of our colleague, and he has asked how do we get to know that he is a negative person, that someone is a negative person, because sometimes we realize it at an end only that he was a negative person. देखो जी, मेरी तो जब शादी होगी ना, तो मेरी बीवी मेरे लिए वो फिल्टर बन गई है। वो औरतों के पास एक सिक्स सेंस होती है, तो बता देती है इस आदमी से बात मत करना, ठीक नहीं है। तो आदमियों के पास तो सिक्स सेंस नहीं होती है, तो मैं अगर वो आदमी पूछ रहा है तो मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। राइट। हर इंसान का एक ऑरा होता है। हमारी बॉडी में ना 7 चक्र होते हैं। मैं भी ए रिलीजियस बात कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं जो स्क्रिप्चर्स और हमारे जितने भी हमारे वेदास हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, और ये 7 कलर में होते हैं। जो रूट चक्र होता है, जो टेल बोन के पास होता है, और एक जो आपका लोटस चक्र होता है, जो सिर के ऊपर होता है, इंट्यूशन, जो पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, विबग्योर। जो इंट्यूटिवनेस है ना, वो आपको इस वायलेट चक्र पे आती है। और ये इंट्यूटिवनेस ऐसी होती है कि आपका जो ऑरा है बॉडी का, आप किसी के पास बैठते हो और आपको अच्छा लगता है, और किसी के पास बैठते आपको बुरा लगता है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के अंदर घुसते आपको भक्ति की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि दीवारों में रस चुका है वो पॉजिटिवनेस। और किसी के घर में घुसते लगता है। मैं घर में आता हूं, अगर घर में बीवी नाराज है, मुझे पता लग जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, वो ऑरा है। अगर आपके डैडी गुस्सा है किसी बात से, आज ऑफिस से गुस्सा होके आए क्योंकि बॉस ने फजीहत की थी, तो आप सामने नहीं आओगे पिताजी के, क्योंकि अभी ये मार्क्स पूछ लेंगे मेरे। यू नो इट। इट्स ओनली व्हेन वी डोंट वांट टू नो इट इज व्हेन वी अट्रैक्ट मोर नेगेटिव पीपल, अदरवाइज वी नो इट। वो दोस्त जो हमेशा मुझसे गलत काम करवाता है, मेरी माँ कहती है मत बात कर इससे, मैं फिर भी जाता हूँ उसके पास। मुझे मालूम तो है वो नेगेटिव है, बट बड़ा मजा आता है उसके साथ बैठ के। तो आपको पता लग जाता है ये बात, आप उसके बारे में कुछ करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है। And if anybody inspires you to become a better person, he is positive. If he does not inspire to be a better person, he is not neutral, he is negative. Yes, Devesh. The next question is by Abhijit Kaushal. Sir, what do you do when you are not busy working? मेरे से आलसी आदमी कोई नहीं है। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, इसीलिए I want to finish off in the next 3 years what I want to do in the next 50 years. So I am always doing something or the other to ensure that then I have not to do anything. मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मैं ना 45 साल की उम्र के बाद 3 दिन हफ्ते महीने में रोज हर 3 मतलब 1, 2, 3 तारीख एवरी मंथ मैं और मेरी बीवी हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं। हम बड़े घुमक्कड़ है, मेरे को गोल्फ खेलनी है। मेरे दोस्त को बोला कि मैं रोज गोल्फ खेलूंगा, तो वो कहता बोर हो जाएगा। मैं कहा बट लेट्स फाइंड आउट, आज तो जिंदगी में हम कर ही नहीं सकते काम। मैं सोना चाहता हूँ। कैसे? किसी पहाड़ पे गाड़ी पार्क करके बाहर बिस्तर लगा के ठंडी हवा में। तो मैं बहुत बेला आदमी हूँ, इसीलिए मैं आज इतना काम करता हूँ जितना कोई नहीं करता होगा। सो टू आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट डू आई डू इन माय फ्री टाइम? Yeah, when you are not busy. Yeah. Yes. If I am not busy, I am worried that there is something that needs to be done that I'm not doing. Next question is by Shreya. अच्छा नहीं लगा जवाब किसी को? मेरा जवाब अच्छा नहीं लगा? So that was pretty relevant. I start my day at 7, I end my day at 2 o'clock, so I'm कुछ चलता रहता है। Next question is by Shreya Rawat. She is asking, can you please share your experiences of your success? And then she is saying just in short. अच्छा, it was very good. शॉर्ट में तो कितना? टीचर ने पूछा बच्चे से कि एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी?
तो बच्चा कहता है कि मैडम मुझे सारी डेफिनेशन याद नहीं है, थोड़ी सी याद है। टीचर कहती है चल थोड़ी सी बता, कहता है एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो शॉर्ट में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाता, बट क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा मेरे को एक बारी, मैं क्यों निकल जाता हूँ, मैं कई बारी कच्चे बदल जाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर सक्सेस। हाँ, तो मेरा सक्सेस का एक्सपीरियंस वाज नॉट जॉब, मेरा सक्सेस का एक्सपीरियंस था ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, एंड मैंने वो इतनी सारी इकट्ठी कर ली थी कि जिंदगी में कभी फेलियर महसूस नहीं हुआ। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू माय फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। अगर मेरे को छोटी सी चीज है, सुबह 5 बजे उठना है, वो एक छोटा सक्सेस है। मेरे को आज 4 पराठे नहीं खाने, 3 खाने हैं, वो छोटा सक्सेस है। लाइफ में आई हैव ऑलवेज वर्कड एंड एंजॉयड स्मॉल 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 सक्सेसेस दैट हैव लेड टू लार्ज सक्सेसेस। ओके, सो इस विस्तार में नहीं बता पाऊंगा। एंजॉय स्मॉल लिटिल सक्सेसेस, स्मॉल लिटिल सक्सेसेस। मैंने किताब खोली है, आज मैं 3 पेज पढ़ने हैं, स्मॉल सक्सेस। मुझे आज अपने गोल लिखने हैं, स्मॉल सक्सेस। सोने से पहले मुझे थैंक यू लिखना है भगवान को उन चीजों के लिए जो उसने मुझे दी है, स्मॉल सक्सेस। बड़े सक्सेस अपने आप हो जाएंगे, दे आर ऑटोमेटिक। गाय लो क्योंकि वो दूध देती है, गोबर के लिए मत लो। बड़े सक्सेस अपने आप हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगी, पैसे बन जाएंगे। छोटे सक्सेस पे काम करो। Apart from this, sir, a lot of praises are coming for you, and our director ma'am is saying this is a brilliant thought. It was about your inspiration one, and then the way you mentioned that if someone inspires you to do something positive, then the person is good for you, and if he inspires you towards negative, he is bad for you. So she is appreciating you for this simple thought and brilliant Much thought. appreciated. Then sir, next question is from Anshika Shukla. She is asking, sir, do you believe in vibes coming from person to person? Like you start talking to a person, do you receive any kind of vibes? Is it, do you believe in Oh, this? absolutely. Absolutely. My life is based on that. देखो, vibes कैसे आती हैं? Again, that is aura. If you are at peace with yourself, you will be able to hear what the other person is saying. If you are listening, भगवान ने आपको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। इफ यू वांट वाइब्स, कान खुले रखना। ये सेंसिटिव परसेप्शन इतनी तगड़ी है, आपको सब समझ में आ जाए क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। एंड वाइब्स जो है, इट्स एवरीबडी हैज इट, जानवर तक के पास है। अगर मैं नाराज हूं, मेरे कुत्ते तक को पता है कि भैया नाराज आज हमारा साहब। वाइब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ को बच्चे के लिए हो या आपको भगवान के साथ हो, वाइब्स होती है ओनली इफ यू आर लिसनिंग। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रांजिस्टर अंदर है। मैं छोटा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे के अंदर अभी गाना नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं एक रेडियो रख दूं और उस पर 95 FM लगा दूं तो गाना बजने लगेगा। विच मीन्स सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीबडी इज ऑलरेडी देयर। आपने अपना रेडियो नहीं ऑन किया, उसको ट्यून नहीं किया हुआ। ओपन अप टू व्हाट पीपल आर सेइंग, लिसन टू व्हाट इज हैपनिंग। बोलने के लिए तैयार मत रहो, सुनने के लिए तैयार रहो। You will start to absorb the vibes. And vibes is everything in life. Believe me, when you grow in life, it is everything is vibe. You don't have time to understand. You just have a vibe. Deals vibe पे हो जाती है, hiring vibe पे हो जाती है, investment vibe पे होती है. Okay? Yeah. What else? Last question for the day. Pallavi Singh is asking, how do you keep yourself away from negative people? By deciding. देखो, that takes a lot of अगर मैं courage. आपका, तो I'll tell you and I'll give you an example. अगर आपके पास एक खेत है, देवेश आपसे एक बात करता हूं मैं जरा। आपने फार्मलैंड खरीदा, खेत खरीदा, जमीन खरीदी और आपने उस पर खेती करनी थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और 2 साल तक वो खेत ऐसे ही पड़ा रहा। पता है उस पर ऑटोमेटिकली क्या उग जाएगा? जंगली घास, Weeds. कभी वीड्स के किसी को बीज लाते देखा है? ये नेगेटिव है। आप कुछ नहीं करो ना अपने साथ, नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। लेकिन पॉजिटिव करने के लिए आपको खुदाई करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, बीज लगाना पड़ेगा,
उसको ध्यान रखना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, चिड़ियों से बचाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब तक उसका पौधा नहीं निकल आता. So if you don't do anything with your life, negative is automatic. And जब भी छोड़ दोगे, आप आज छोड़ दोगे, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. लेकिन मेंटेन करना पड़ता है अपनी लाइफ को अगर पॉजिटिव रहना है तो. So if you've taken a farming land, do something with it, do a positive program and your life will be good. Don't do anything, weeds will grow automatically. That's negative. Sir, our director ma'am has responded by superb on this answer of yours. She has replied so many times with claps. I could see she is actually clapping. I could see that. This answer was superb. I mean, I am totally floored, and I wish people could understand it. मैम यही चीज है कि ये चीज लोग समझ सके अगर इस बात को तो कितना अच्छा है. Absolutely, ma'am. Absolutely. जी. It has been a wonderful session, sir. Yeah. I'm really happy. I'm really happy to have spoken to an interesting forum. I usually do sessions which are either only kids, young adults or adults. So yeah, थोड़ा सा mix था. Teachers भी थे यहाँ पे, students भी थे. But I'd love to be more engaged with the youngsters, and I think this is the way I feel I can give back to society. Because आज की डेट पे डायरेक्शन मिलना is more important than किसी को कोई opportunity देना. Opportunity वो अपना ढूंढ लेगा अगर direction होगी. Right. So with that, I think I am very happy that you invited me here. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, Devesh, and all students. Thank you so much. Namaskar. Thank you. It was wonderful. It was wonderful. Maybe we can look at the results of the polls. I mean, that is something which I would like to. I want to ask, please, if you can just share the results of the poll. Monica, ma'am. Okay. My goals are based on my own thoughts. Interesting. Very good. So I think this is a good crowd. How many people are? Sir, कितने लोग सच बोल रहे हैं इसमें? देखिए मैम, अगर ये झूठ भी है ना, तो ये अच्छा झूठ है तैयार होने के लिए. अगर मैं बिलीव करना शुरू कर दूं इसी झूठ को तो सच हो जाएगा ये. ये बात भी सही है. एटलीस्ट उनको एहसास तो होगा. हाँ, बिल्कुल. तो कोई बात मुझे लगता है जी बचपन से मैं झूठ बोलना आता है, लेकिन सिर्फ झूठ को डायरेक्शन देनी है हमने. वो भी एनर्जी है ना. सही बात. नेक्स्ट क्या है जी? I have a clear vision of my future self. That's also very good. Very good. So if someone has said no, and I think almost 40% people have said no, I will be more than happy to conduct specific classes and sessions to give you that direction. Devesh will share my email ID, and more than happy to help any student, university, people, teachers, anybody to have this clear direction. And this is an ongoing effort. ये एक बार में नहीं होगा. हाँ जी, next क्या है जी? Next देखिए. I have clearly defined my short-term goal. Very good. दोस्त, अगर आप लोग लिख ली, जिन्होंने नहीं लिखा उन्हें लिख लेनी चाहिए. जिन्होंने लिखे हैं वो दीवार पे लगा दो. मेरे घर की सारी दीवारें, बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, बाथरूम की, किचन, ड्रेसिंग टेबल, हर जगह में मेरे गोल लिखे हुए हैं विद फोटोज, डेट्स, स्पेसिफिकेशंस. मेरे कमरे में कोई घुसता है उसको मालूम है कि मैं 5 साल बाद क्या करने वाला हूँ. खुली किताब बन जाओ, खुली किताब. छुप के गोल्स कभी भी छुप के अचीव नहीं होते हैं. अटैक होता है, किसी पे वार होता है छुप के. अचीवमेंट करनी है, खुल के करो, शर्मा मत. हाँ जी. ओह, ये तो भाई आपकी टीचरें बताएंगी. ये तो मैं नहीं बोल सकता. ये तो आपके टीचर बताएंगे जब असाइनमेंट देंगे आपको. क्यों मैम? ये तो पता लग जाएगा. जी. चलो जी, नेक्स्ट देखते. Okay. So while people say that I have a mentor and say yes, it's a good thing. People have said I want to have a mentor. I run a company called the Gyani Says, which concentrates on helping students get direction. Usually I work along with the university or the institute so that the goals can be better aligned. Because कई बार क्या होता है, if you don't know why the student is wanting to do something and it's not aligned with the course he's doing, तो वो थोड़ा सा generic हो जाता है. So I'll be more than happy in case you want to do a session where people want to understand direction in life. I'll be more than happy. हाँ जी, next जी.
ये तो सच बोले सबने. We do get upset. यार. It is not easy to forgive. महात्मा गांधी की हमने बात सुनी थी कि जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो. ये सुनना बड़ा आसान लगता है, करना बड़ा मुश्किल लगता है. और इस चक्कर के अंदर हम इतनी नफरत पैदा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बस जहर मैं खाऊंगा मर वो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कभी. जस्ट फॉरगिव पीपल. नेक्स्ट जी. ये भी बेटा अभी टाइम पे पता लगेगा. अभी तुमने शुरू किया है. ये तुम्हारे टीचर बताएंगे कितनी पॉजिटिव एसोसिएशन है. जब क्लासें बंक होंगी तो मूवी हॉल के पास मिलोगे, मैकडॉनल्ड्स की तुम बर्गर तोड़ रहे होगे, तब पता लगेगा कितने पॉजिटिव हो. तो ये तो टाइम बताएगा. आई कांट रियली कमेंट ऑन दिस, बट गुड दैट यू आर ऑलरेडी इन द डायरेक्शन. वेरी गुड. हाँ जी. Oh, that is nice. I'm so happy. I first say good job, Mandeep. Nobody said no. 2-4 को लग रहा है कि मे भी पता नहीं. दादी की पूरी बात तो समझ नहीं आई. But I think this is overwhelming. I'd love to engage with the institute more. And 1 घंटे में बड़ी ही superficial बातें कर पाए, deep बात नहीं कर पाए. तो I think engagement करेंगे. कुछ देखते हैं. If things work out, then we'll be able to do a much more deeper session. Very good. So I think this is done. This is the last poll, right? Right. Oh, okay. Great. It was a plum pleasure to have interacted with all of you. Thank you so much. आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा. Wish you all the success. सर 1 सेकंड आप रुकेंगे जरा. आपके लिए हम लोगों ने कुछ तैयार किया है. हाँ जी, मैं रुक जाता हूँ. Just a second. Sure. वैसे तो आप होते कैंपस में तो डेफिनेटली और भी कुछ सेवा की जाती है. Absolutely. अरे बाबा क्या बात है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. It's so nice. Good gesture. Thank you so much. Wish you all the best. And stay safe. Stay healthy. Thank you. Namaskar. Thank you. So students have to be given instructions for tomorrow. Students, you already have the timetable for tomorrow, I think. Yes, Today we ma'am. call, we're calling it off for today, I think. And tomorrow again we meet at the same time. So looking forward for another fulfilling day. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See you tomorrow then. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.